Hello everyone, welcome to One Academy. This is Debashri here, working as an assistant professor. So if you want to join an Academy Plus, you can join it with the help of my referral code DEBA1. What are the benefits of One Academy Plus? Are daily live classes, structured courses, live tests and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription. To avail this offer, you can use my code DEBA1. Let's move to the price list. So for 1 month, if you join, the amount would be 1890. For 3 months, it is 4725. For 6 months, it is 7560. For 12 months, 9450. And for 24 months, it's 11,340. If you use my code DEBA1, you'll be getting a 10% off on all this. To avail this offer, please use my referral code. To get maximum benefit on minimum price, you can use my referral code DEBA1. Okay, so let's move to the topic DNA replication. Last part I have covered up the DNA replication in prokaryotes. This part we will see DNA replication in eukaryotes along with the comparison between the prokaryotes and eukaryotes, right? The language of the class will be bilingual, both Hindi and English, right? Okay, so this is an outline of the process इन यूकैरियोट्स के सेल्स में जैसे डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में जिस तरीके से होता है उसका एक ब्रीफ आउटलाइन मैंने यहाँ रखा है टू गेट अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द रेप्लिकेशन प्रोसेस, राइट? इफ वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ origin, that is oocytes, the oocyte of eukaryotes is multi-repliconic. Multi-repliconic means what? Many origins. Origin of replication, right? Say this is a DNA, right? In this DNA, you can see these are what I am drawing 1, 2, 3, 4. These all are known as origin of replication, or you can say oocytes, right? As there are more than one oocyte, so we call it multi-repliconic, right? DNA replication site or origin is multi-repliconic, but replication takes place in a single round, or you can say single round replication takes place, right? The oocyte, we call it automated replication sequence. Origin of replication in eukaryotes is known as automated replication sequence, right? Helicase is an enzyme which converts double-stranded DNA to single-stranded DNA. It basically breaks the hydrogen bond between the base pairs, right? The helicase which we'll be using in eukaryotes is known as MCM helicase. It do not need ATP activity, right? Single-stranded binding protein used is known as replication protein A, RPA, right? Primer removal is done with the help of RNase H or FEN. FEN is known as flap endonuclease, right? Replicating enzyme used is known as DNA polymerase 3 in case of prokaryotes, and in case of eukaryotes we have delta and epsilon, right? Topoisomerase is topoisomerase 1 and topoisomerase 2 for the eukaryotes. तो अगर मैं सिंपल सी बात डिस्कस करती हूँ कि मतलब यूकैरियोट्स में जो बेसिकली रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे मैंने उसके सिर्फ एक ब्रीफ आउटलाइन दिया है ताकि आपको ये पता हो कि कौन सा चीज क्या हो रहा है जब हम डिटेल में देखेंगे तो, राइट? तो ओरिजिन जो होता है बेसिकली यूकैरियोट्स का जो ओरिजिन होता है वो मल्टी रेप्लिकॉनिक होता है. मल्टी मतलब क्या? मेनी. रेप्लिकॉनिक मीन्स रेप्लिकेटिंग साइट्स, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, oocytes. तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो oocytes होता है वो मल्टी रेप्लिकॉनिक होता है, मतलब बहुत बार वो प्रेजेंट होता है, राइट? लेकिन जो रेप्लिकेशन होता है वो सिंगल राउंड ही होता है, राइट? यूकैरियोट्स में हम जो oocyte है, oocytes हम प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं, राइट? यूकैरियोट्स में हम उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको ARS, दैट इज ऑटोमेटेड रेप्लिकेटेड सीक्वेंस और ऑटोमेटेड रेप्लिकेशन सीक्वेंस, राइट? अगर हम उसके बाद हमें एंजाइम की जरूरत होती है, जैसे ही हमने ओरिजिन को रिकॉग्नाइज किया तो उसके बाद
एक एंजाइम की जरूरत होता है। कौन सा एंजाइम? हेलिकेज। क्या क्या काम है उस एंजाइम का? बेसिकली ये आपका क्या करता है, जो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं उनको ये कन्वर्ट करता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, राइट? इट कन्वर्ट्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट? और यहाँ जो यूकैरियोट्स में जो आपका एमसीएम हेलिकेज होता है, इनमें कोई भी एटीपीएस एक्टिवेटेड नहीं होता है, राइट? नेक्स्ट आता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब मान लो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो ये कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट? जैसे ही उसको हेलिकेज एक्ट किया तो ये ऐसे ओपन हो गया, क्योंकि उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड को ब्रेक किया, करने के बाद ये सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज हो गया। अब ये जो स्ट्रैंड है, ये दोनों, अब ये दोनों आपस में लाइगेट नहीं करे, उसके लिए हमें कुछ प्रोटीन्स की जरूरत है, जो क्या करेंगे, इन स्ट्रैंड्स को ऐसे पकड़ के रखेंगे ताकि वो क्या करे, वो फिर से लाइगेट ना हो। इट प्रिवेंट्स रीलाइगेशन ऑफ द स्ट्रैंड्स, राइट? तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इनका फंक्शन क्या है? बेसिकली ये क्या करता है, जो भी आपका स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, जो हेलिकेज बोन ब्रेक करते हैं, वो क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड को पकड़ के रखते हैं ताकि वो फिर से रीलाइगेट नहीं करे, राइट? प्राइमर रिमूवल की अगर हम बात करते हैं, प्राइमर रिमूवल के लिए एंजाइम जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं क्या? आरएनएज एच और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। आरएनएज एच और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस ये दोनों ही यूज होता है आपका यूकैरियोट्स में, राइट? अगर हम, क्लियर हुआ बात? यस, ओके। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज रिमूवल, अगर हम प्राइमर रिमूवल की बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो उसमें होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, राइट? रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो रेप्लिकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, वो मेन एंजाइम क्या है आपका? डीएनए पॉलीमरेज 3, राइट? ये बेसिकली होता है आपका प्रोकैरियोट्स में। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, उनमें आपका यूज होता है डेल्टा एंड एप्सिल नॉट, राइट? जो डेल्टा होता है वो बेसिकली आपका लेगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, और जो एप्सिल नॉट होते हैं वो आपका लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, राइट? टोपोआइसोमरेज की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली दो तरह के होते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2। प्रोसेसिविटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? जो प्रोसेस को फर्दर प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, राइट? उसके लिए जो फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पीसीएनए, दैट इज प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, राइट? दूसरा क्लैंप लोडर होता है। क्लैंप लोडर का फंक्शन क्या है? इसको हम बोलते हैं आरएफसी, दैट इज रेप्लिकेशन फैक्टर सी, राइट? ये क्या करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज को स्टेबलाइज करते हैं, क्लैंप लोडर, राइट? रेट ऑफ रेप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली 100 न्यूक्लियोटाइड होता है पर सेकेंड, राइट? सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। अब हम इस पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे कैसे क्या क्या होता है, राइट? अगर मैं फर्स्ट जो प्रोसेस होता है आपका, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बेसिकली ये आपका टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, जो कि आपका टेम्पलेट में डिपेंड करता है, right? So DNA replication is basically a template dependent process that depends on a particular strand to synthesize the new strand, right? That means it needs a support of a single strand, or it needs a support of one strand to form the other strands, right? अगर हम बात करते हैं, ये आपका अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये आपका क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट? और हमें पता है जो डीएनए सिंथेसिस होता है हमेशा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। मान लो ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, राइट? तो ये वाला जो स्ट्रैंड होता है उसको हम बोलते हैं क्या? टेम्पलेट। दिस स्ट्रैंड वी कॉल्ड इट टेम्पलेट। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिस होते हैं, जो एडेनिन है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बेसिस यहाँ फॉर्म होगा। उसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए, जो हमेशा एडेनिन होता है, इट ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद थायमिन विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, right? Similarly, guanine forms bond with cytosine 3 hydrogen bond, right? Guanine forms 3 hydrogen bond with cytosine, right? So ये जो bonding होता है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, right? So जो क्या होता है, जैसे ही टेम्पलेट होता है, जैसे ये डीएनए हो गया आपका, ये हो गया आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों टेम्पलेट? क्योंकि इसके जो ऑपोजिट बेसिस होते हैं
ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ऑपोजिट, जैसे मान लो यहाँ पे ए है, ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, टी के साथ, तो यहाँ आएगा टी, राइट। तो इसके थ्रू ये इसका सिंथेसिस हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। कैसे सिंथेसिस हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए, आप ध्यान देना। See here, this is the base, this is base, this is sugar, right, and this is the 3' end of the sugar, right, and this is another base with sugar, and here it has got 5' phosphate, right. If you see 5' phosphate, this is alpha phosphate, this is beta phosphate, and this is gamma phosphate, right. Now when there is a formation of bond between these two nucleotide, there is a removal of this two beta and gamma phosphate from the 5' end, right. Only alpha phosphate will remain, and this alpha phosphate will form bond with 3' hydroxide, right, and this is what we call phosphodiester bond. Clear everyone? क्या होता है, जो आपका नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं, सुगर होते हैं, वो क्या करते हैं, ये एक बेस और सुगर हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, राइट। अब ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट। तो ये कैसे होता है, यहाँ पे एक 3' हाइड्रोक्सी एंड होता है, राइट। वो क्या करते हैं, जो आपका 5' फॉस्फेट होता है दूसरे सुगर का, सेकेंड सुगर का जो आपका 5' फॉस्फेट होता है, यहाँ से अल्फा बीटा फॉस्फेट अलग हो जाते हैं, सॉरी गामा और बीटा फॉस्फेट अलग हो जाते हैं, सिर्फ अल्फा फॉस्फेट रहता है, राइट। यह अल्फा फॉस्फेट क्या करता है, आपका 3' हाइड्रोक्सी के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट। तो ये आपका हो गया क्या, टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस, राइट। यह अगर क्लियर हुआ अभी बात सबको, ओके। नेक्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करती हूँ, बेसिकली ये आपका 3 स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। एंड जो आपका रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, वो कौन से फेज में होता है, वो होता है आपका एस फेज, राइट। एस फेज पता है सबको, सेल साइकिल में हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट, ओके। अभी अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं, रेप्लिकेशन जो होता है हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है, रेप्लिकेशन आपका 5' to 3' डायरेक्शन में होता है रेप्लिकेशन, राइट। 5' to 3' डायरेक्शन में क्यों होता है, ये देखिए, ये हो गया आपका 5' to 3', ये पर्टिकुलर स्ट्रैंड, दिस 3' एंड दिस 5', ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैंड है वो आपका एक्ट करते हैं किसकी तरह, टेम्पलेट की तरह। दिस स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड द कॉन्ट्राडिक्टरी और यू कैन से opposite strand which is in the 5' to 3' direction will be synthesized from this template strand, right। तो यहाँ पे जो होता है आपका 3' हाइड्रोक्सी ऑक्साइड रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन क्यों होता है, why replication or why synthesis always takes place from 5' to 3', this is because there is a presence of 3' hydroxide in the, there is a presence of hydroxide group in the 3' end, right, and because of this hydroxide group it is easy to form a phosphodiester bond, or you can say 3' hydroxide helps in the formation of phosphodiester bond। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, आप ध्यान से देखो, ये हो गया क्या, न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे मान लो कोई बेस है, राइट। अब क्या होगा, जो यहाँ पे जो 5' फॉस्फेट है ये जाके अटैक करेंगे आपके 3' हाइड्रोक्सी से, ये दोनों तो बाहर निकल जाएंगे, बीटा एंड गामा, जो आपका अल्फा हो गया वो बॉन्ड फॉर्म किया किसके साथ, 3' हाइड्रोक्सी के साथ, और इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट, ओके। नेक्स्ट प्राइमर, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आपको प्राइमर की जरूरत होता है, देयर इज अ नीड ऑफ प्राइमर फॉर सिंथेसाइजिंग द न्यू स्ट्रैंड, राइट। तो प्राइमर बेसिकली क्या है, प्राइमर आपका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। बेसिकली क्या है, ये एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, राइट। तो प्राइमर बेसिकली क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज का कैपेसिटी नहीं है या एबिलिटी आप बोल सकते हो, डीएनए पॉलीमरेज का एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से खुद सिंथेसाइज करे, राइट। तो यहाँ पे प्राइमर आके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, और प्राइमर 3' हाइड्रोक्साइड को प्रोवाइड करते हैं, जहां से डीएनए पॉलीमरेज अपना क्या करते हैं, डीएनटीपीस को ऐड करके चले जाते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग कलर लेके आपको समझाया है, जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्राइमर,
और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, डीएनटीपीज, जो कि आपका डीएनए पॉलीमरेज इसको ऐड करते जाते हैं, राइट। तो प्राइमर इज बेसिकली अ आरएनए और डीएनए, और यू कैन से इट इज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, राइट। तो पहले क्या होगा, द प्राइमर बेसिकली helps, or you can say provides 3' hydroxy N to the upcoming dinucleotide triphosphate. Clear? Okay, there is a concept called proofreading. अब जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज आपके DNTPs ऐड करते रहेंगे, तो obviously there is a need to check whether it is correct or not, whether there is any kind of you can say disturbances or any kind of miss base is added or not, right? Miss pair, we can say that. So to check these things, there is a need of the proofreading concept, right? So proofreading, basically we call the proofreading is also known as 3' to 5' exonuclease activity. This is synthesis takes place from 5' to 3', right? And proofreading takes place from 3' to 5', right? This is proofreading. Proofreading takes place from 3' to 5'. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बेसिकली आपका सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है. दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? व्हाई? मान लो दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट? नाउ व्हेन द हेलिकेज एक्ट ऑन इट, इट अंडरगो अ रेप्लिकेशन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल, राइट? अभी क्या करेगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल को अगर मैं बीच में काट दूं, if I cut it at the middle of the replication bubble, you will be getting a 2 replication fork, right? This is 1 fork, say. So अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका 5' to 3' end है, यहाँ पे continuous synthesis होगा strand का. There is a continuous synthesis of strand and there is a discontinuous synthesis of strand, right? So जहाँ पे continuous synthesis होता है उसको हम बोलते हैं क्या, leading strand. और जहां पे आपका डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होते हैं उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड. एंड द इंडिविजुअल फ्रेगमेंट, दिस इंडिविजुअल फ्रेगमेंट वी कॉल्ड इट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. वी कॉल्ड इट व्हाट? वी कॉल्ड इट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. क्लियर? So this DNA replication is a semi-discontinuous process. There is a continuous synthesis of one strand and a discontinuous synthesis of other strand, right? जो जहाँ पे continuous होता है उसको हम बोलते हैं leading strand, और जहाँ पे आपका discontinuous होता है उसको हम बोलते हैं lagging strand, right? Clear हुआ? Confusion है कोई? नहीं? Okay, great. Next, replication is bidirectional. Of course, replication is bidirectional. मतलब क्या? अगर हम जब ये दो डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है, यहाँ से भी यहाँ से भी, तब हम उसको बोलते हैं क्या, बाई डायरेक्शनल, राइट? अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स में आपका ध्यान से देखना, यहाँ पे सिर्फ एक ओराई साइट है. क्या है? एक ओराई साइट है, तो हम उसको इसीलिए बोलते हैं मोनो रेप्लिकॉनिक. क्या बोलते हैं? मोनो रेप्लिकॉनिक. क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग ओनली द सिंगल साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट? तो इसको हम बोलते हैं मोनो रेप्लिकॉनिक. जबकि इनके पास सिंगल ओरिजिन है, बट दे कैन अंडरगो मल्टीपल राउंड रेप्लिकेशन. मल्टीपल राउंड रेप्लिकेशन मीन्स हाउ दे विल अंडरगो इज, सपोज दिस इज द ओरिजिन साइट, राइट? क्लियर? The moment one strand is synthesizing from this, the moment the first round of replication reaches here, the second round starts from here, right? So we call it has got single origin but undergo multiple round of replication, right? But if we talk about eukaryotes, just now we have seen, right, our first slide, it has multiple origin. That is why it is known as multi-repliconic. That is why it is known as multi-repliconic, right? And but it undergoes single replication. Though it has multiple origin, but it undergoes single or one round of replication, right? Why? Due to inactivation of CD6 and CD1, which provides ATP to MCM helicase, right? I told you MCM helicase do not have ATPase activity, so it needs help from the CD6 and CD1,
राइट। सो एक बार जब CDC6 एंड CDT21 यूज्ड हो जाते हैं तो वो फिर से इनएक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, जो आपका यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टी रेप्लिकॉनिक होने के बावजूद भी सिंगल रेप्लिकेशन अंडरगो करते हैं, राइट। ये हो गया आपका रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल। ओके, देयर इज ए एक्सेप्शनल केस कि किसी यू कैन से किसी में जो रेप्लिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल भी होता है, जैसे आपका वायरसेस। तो ये आप बोल सकते हो दिस इज बेसिकली यू कैन से इट इज अ एक्सेप्शनल केस। वायरसेस में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ यू कैन से एक्सेप्शनल केस, राइट। अब देखिए, जो रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल हो रहा है प्लस यूनिडायरेक्शनल भी हो रहा है किसी में। अब देखो बाई डायरेक्शनल जो हो रहा है वहां पे दो साइड में आपका एक ही साथ क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा, राइट। लेकिन अगर हम यूनिडायरेक्शनल की बात करें तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम रिक्वायरमेंट विल बी मोर। तो अगर बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन के लिए 40 मिनट्स लग रहा है तो यूनिडायरेक्शनल में कितना लगेगा, 80 मिनट्स। क्लियर, क्योंकि वो एक डायरेक्शन से सिंथेसिस हो रही है तो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम, right? If you see this one here, it is say the synthesis takes place from both the direction, right? So it requires less time, but here it starts from only one direction, right? So it is taking more time. So for bidirectional the time will be less, but for unidirectional the time will be more. That's it. What's so big deal? यस, सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। आप ध्यान से देखिएगा पेपर पहले ईयर्स का, यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक और चीज सिखाया आपको, बाई डायरेक्शनल, या फिर जो मैं आपको यहाँ बोल रही थी, क्या बोल रही थी कि ये जो प्रोकैरियोट्स है उनमें मल्टीपल राउंड रेप्लिकेशंस होता है। कैसे होता है, अब देखना, हम यहाँ पे मान लो ये मेरा ये उनका जो है आपका डीएनए है, राइट। अब ये OIC है, ये वाला साइट OIC है। OIC जैसे ही ओपन करेगा बाई डायरेक्शनल में दोनों डायरेक्शन से सिंथेसिस होगा। अब देखना, यहाँ से ये वाला जो सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ से इस OI से जो ये सिंथेसिस हो रहा है, ये OI साइड है, राइट। यहाँ से सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ से जो सिंथेसिस हो रहा है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट राउंड, और यहाँ से जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं सेकेंड राउंड, राइट। क्लियर हुआ बात। सो यही बोलते हैं क्या, डबल रेप्लिकॉनिक। अगर हम रेप्लिकेशन बबल के बारे में बात करते हैं तो देखना, ये हो गया, लेट मी चेंज द कलर। अगर आप ध्यान से देखो, ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। अब इसमें हेलिकेज एक्ट किया तो ये हो गया ओपन, राइट। यहाँ पे बॉन्डिंग है, यहाँ पे ओपन है, तो इसको हम एज ए होल क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, राइट। बट अगर आप रेप्लिकेशन बबल को बीच में तोड़ोगे तो इट इज लाइक वन स्ट्रैंड। यहाँ पे अगर आप इसको बीच में तोड़ोगे तो आपको एक वाई शेप स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से, right? If you break it in middle, you will be getting this type of structure, and this Y-shaped structure we call it replication fork. So there is a presence of one replication bubble, but if you cut the one replication bubble, you will be getting a two replication fork, right? Two replication fork में आप देखो, ये हो गया आपका replication fork. If you see this carefully, this part is what, double stranded DNA, and this part is your single stranded DNA, right? So we can say that replication fork is a mixture of both double stranded DNA as well as single stranded DNA. ये mixture है both double stranded DNA and single stranded DNA का। Clear हुआ? कोई भी confusion है you can ask me, right? Next, और ये मैंने यहाँ पे comparative study किया है so that it's easy for you guys to understand, right? Okay. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो इनमें बेसिकली होता है मोनो रेप्लिकॉनिक, बट यूकैरियोट्स में कैसा होता है आपका मल्टी रेप्लिकॉनिक। क्लियर। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें 13 मर होते हैं एंड 9 मर होते हैं, राइट।
जो आपका रिकॉग्निशन होता है डीएनए ए प्रोटीन का, वो रिकॉग्नाइज करता है 9 मर से, और 13 मर से आपका मेल्टिंग स्टार्ट होता है। ये जो ओराई साइट है ये बेसिकली आपका 245 बेस पेयर से बना हुआ होता है इन प्रोकैरियोट्स। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, इनमें बहुत सारे मल्टी रेप्लिकॉनिक साइट्स होते हैं जो कि 100 बेस पेयर्स के होते हैं, राइट। नेक्स्ट, जो आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं प्रोकैरियोट्स में, हम उसको बोलते हैं डीएनए ए, और ये बेसिकली इसको एटीपी की जरूरत होता है, राइट। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करती हूँ मैं, तो ये जो रिकॉग्नाइज करते हैं ओरिजिन ARS, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को यूकैरियोट्स में हम ARS बोलते हैं, जो कि ऑटोमेटेड रेप्लिकेशन साइट्स है, राइट। उसको जो रिकॉग्नाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ओरिजिन रिकॉग्निशन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बेसिकली ये बाइंड करते हैं ARS से, लेकिन इनको हेल्प चाहिए होता है CDC6 एंड CD2 राइट। तो अगर मैं बात करूं, see if we talk about the replication between prokaryotes and eukaryotes, the prokaryotes is having a monorepliconic site, whereas eukaryotes are having multi-repliconic site, right. Eukaryotes are having the single round of replication, eukaryotes are having single round of replication, but prokaryotes are having multiple round of replication, right. The origin of replication of prokaryotes consists of 9 mer and 13 mer. The recognition takes place at 9 mer and melting of bone takes place from 13 mer, right. But in case of eukaryotes, the recognition there is, you can say, A1, B1, B2 domain, right. So recognition takes place from A1, B1 domain. Clear? So this origin of replication site is recognized by DNA A in prokaryotes, and this DNA A is your ATP dependent, right. But in case of eukaryotes, the origin recognition complex will recognize the automated replicated sequence with the help of CDC6 and CD1, right. Next, this is the recognition diagram, how it recognizes. This is, you can see, it is DNA A and this is ORC, right. Once it has been recognized, there comes a helicase, right. So what is helicase? Basically, helicase are proteins. Helicase for a helicase, basically helicase are protein, right. Helicase क्या है आपका? Helicase are proteins that convert double-stranded DNA into single-stranded DNA, and it needs ATP, right. It is a hexameric structure. Helicases in case of prokaryotes we call it DNA B. The helicases in case of prokaryotes we call it DNA B, and the helicases in case of eukaryotes we call it MCM helicase, right. Helicase needs a help of a loader, right. So the helicase loader in prokaryotes is known as BC, that is B is helicase, C DNA, C is the loader, right. But in case of eukaryotes, it is CDC6 and CD1. So this is basically your double-stranded DNA, and this is the helicase bounded double-stranded DNA, right. So helicase have helicase have convert this part from double-stranded to single-stranded. Now there is a chance that they may get religate, right. So to prevent the religation, there is a presence of SSBP, which we call single-stranded binding protein. And one more important thing, once the helicase breaks the hydrogen bond, you will be getting this type of structure which we call replication bubble. क्लियर हुआ? डीएनए हेलिकेज क्या करते हैं, आपके जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। उनको उस हेलिकेज को एटीपी की जरूरत होती है, प्लस वो हेक्सोमेरिक होता है, राइट। प्रोकैरियोट्स में जो हेलिकेज होता है उसको हम बोलते हैं डीएनए बी। उसको जरूरत होता है एक लोडर की, जो कि डीएनए हेलिकेज को लोड करे डीएनए पे, राइट। जो लोडर की जरूरत होता है प्रोकैरियोट्स में, उस लोडर को हम बोलते हैं डीएनए सी, राइट। यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करती हूँ, जो डीएनए जो हेलिकेज होता है बेसिकली वो है आपका एमसीएम हेलिकेज। इसको जो लोडर की जरूरत है वो है CDC6 एंड CD1, राइट। अब ये जब स्ट्रक्चर ओपन हो गया है, तब अब ये दोनों फिर से देयर इज अ चांस कि लाइगेट करें, राइट। तो उस रीलाइगेशन को रोकने के लिए एक अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, राइट। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में हम उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ही बोलते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में हम उसको बोलते हैं RPA। RPA का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, राइट।
ये बेसिकली क्या करते हैं आपके, ये स्टेबलाइज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, क्योंकि इनके पास हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स होता है, राइट। अब जैसे ही मान लो नेक्स्ट आता है आपका टोपो आइसोमरेज। ये क्या काम करते हैं, जैसे ही हेलिकेज सेंटर से ओपन करना शुरू करेंगे तो इसके दोनों एंड में देयर इज अ कॉइलिंग, देयर इज अ पॉजिटिव कॉइलिंग development takes place in both the sides of the ori site, right? So to remove this positive supercoiling there is a enzyme called topoisomerase. उसका काम क्या है, ये जो supercoiling होते हैं ये बेसिकली उनको रिमूव करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टोपोआइसोमरेज जो आपके यूज होते हैं यूकैरियोट्स में, वो बेसिकली टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2 है, राइट। टोपोआइसोमरेज 1 जो है आपका ये बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड में सिंगल कट करता है, लेकिन जो टोपोआइसोमरेज 2 है वो डबल कट करता है, राइट। तो ये हो गया आपके कुछ डीएनए पॉलीमरेज जो कि आपके यूज होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, राइट। सो कुछ डीएनए पॉलीमरेज मैंने यहाँ रखा है। डीएनए पॉलीमरेज 1, इनका फंक्शन क्या है, रिमूव करते हैं आरएनए प्राइमर को, राइट। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, और ये डीएनए रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 2 की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली डीएनए रिपेयर में हेल्प करते हैं। कौन सा रिपेयर, बेस एक्साइजन रिपेयर। डीएनए पॉल 3 ये हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन। 4-5 बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम वाई फैमिली। क्लियर। डीएनए रेप्लिकेशन, ये जो आपका रेप्लिकेशन एंजाइम्स है ये आपके यूकैरियोट्स के लिए है। डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फा है, इनका काम क्या है, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज दिखाती हूँ आपको। इन हर एक अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, अब ध्यान से देखो, हर एक में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज सभी में होते हैं, राइट। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज सभी में होता है, जो कि आपका पॉलीमराइजेशन का काम करता है, राइट। लेकिन पहले दो में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा में सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी ही देखा जाता है, राइट। लेकिन अगर हम गामा की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन न्यूक्लियस का मतलब क्या है, प्रूफ रीडिंग, राइट। तो यहाँ पे भी ये जो डेल्टा एप्सिलॉन है ये तो सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली इनके पास भी क्या है, आपका प्रूफ रीडिंग कैपेसिटी होता है, राइट। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करते हैं, प्राइमर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अभी हमने देखा जस्ट पहले स्लाइड्स में, प्राइमर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं कौन, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। डीएनए पॉलीमरेज बीटा बेस एक्साइशन रिपेयर में हेल्प करते हैं, राइट। गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड में हेल्प करते हैं, और जो एप्सिलॉन है यह आपका लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे प्राइमर रिमूवल कैपेसिटी नहीं है डीएनए पॉलीमरेज में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमर फॉर्मेशन कैपेसिटी है, जो कि आपकी अल्फा में प्रेजेंट होता है। सबसे पहला वाला पॉलीमरेज अल्फा में प्राइमर फॉर्मेशन की कैपेसिटी है। क्लियर एवरीवन, ओके। अगर हम प्राइमेज की बात करते हैं, बेसिकली दिस इज अ एंजाइम व्हिच रिमूव्स द प्राइमर, राइट। तो प्राइमेज की अगर हम बात करते हैं, सॉरी प्राइमेजेस की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं आपका, ये हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, ये हेल्प्स इन सिंथेसिस, मैंने प्राइमर रिमूवल बोल दिया था, ध्यान से सुनना। प्राइमेजेस जो है वो हेल्प क्या करते हैं, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, राइट। सो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो प्राइमेज होता है वो है आपका डीएनए जी, और जो यूकैरियोट्स है उनमें जो प्राइमेज है वो है आपका डीएनए पॉल अल्फा, जो कि प्राइमर का फॉर्मेशन करवाता है। अगर मैं प्राइमर रिमूवल की बात करूं तो जो यूकैरियोट्स है इनमें आता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस आरएनएस एच, और प्रोकैरियोट्स में कौन सा आता है, डीएनए पॉल 1, राइट। लेकिन अगर प्राइमर फॉर्मेशन की बात करती हूँ मैं, तो यहाँ पे आता है आपके प्रोकैरियोट्स में डीएनए जी, और यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, राइट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला ये है, ये हो गया डीएनए, राइट। यहाँ से आपका रेप्लिकेशन मान लो शुरू हुआ है, तो ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड का सिंथेसिस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, तो इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। उसी तरह से ध्यान से देखना आप, रेप्लिकेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर है, इधर 5 प्राइम है, तो मतलब ये हो गया आपका क्या, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, और इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड।
क्लियर हुआ, राइट। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है कौन सा, अल्फा, जो कि प्राइमर फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, आरएनटीपीज को ऐड करते हैं, राइट। ये सबसे पहले ऐड करते हैं आरएनटीपीज को, फिर लेटर ऑन थोड़ा बहुत आरएनटीपीज ऐड करवाने के बाद लेटर ऑन ये किसको ऐड करते हैं, डीएनटीपीज को, जिसको हम बोलते हैं जिस मैकेनिज्म, इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग, right? So DNA polymerase alpha first adds RNTPs, later on it adds DNTPs, जिसको हम बोलते हैं polymerase switching, क्योंकि RNTP से DNTP में चेंज होना। DNA polymerase alpha ने क्या किया, पहले आपका RNTP ऐड किया, राइट, फिर थोड़ी देर में इन्होंने चेंज किया DNTP, मतलब RNTP पहले ऐड किया, फिर उसके बाद DNTPs को ऐड किया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग। क्लियर हुआ, राइट। अब यहाँ पे मैंने बोला था क्लैंप लोडर, राइट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हो गया डीएनए पॉलीमरेज, ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज को स्टेबल रखने के लिए कौन आता है, बीटा क्लैंप। जो बीटा क्लैंप है वो क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज को स्टेबलाइज करते हैं। कैसे स्टेबलाइज करते हैं, हेल्प्स इन लोडिंग, लोड करके, राइट। जो आपका बीटा क्लैंप है उसको वो क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमराइज को स्टेबलाइज करते हैं, राइट। तो इसको लोड, बीटा क्लैंप को लोड करवाते हैं कौन, ये बीटा क्लैंप जो होता है बेसिकली ये स्टेबलाइजेस द डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में हम इसको बोलते हैं क्लैंप लोडर, सॉरी, ये जो बीटा क्लैंप है बेसिकली ये डीएनए पॉलीमराइज को स्टेबलाइज करते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं क्लैंप लोडर, इसको हम बोलते हैं क्लैंप लोडर। बीटा क्लैंप जो नाम है इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन सेल न्यूक्लियर एंटीजन एंड रेप्लिकेशन फैक्टर सी, जो कि मैंने सबसे पहले वाले स्लाइड में ही डिस्कस किया है, राइट। आप चेक कर सकते हो, ओके, क्लियर हुआ। अब जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो आपका क्लैंप लोडर के बाद रेप्लिकेस एंजाइम आते हैं, वो क्या करते हैं, आपका डीएनटीपीस लगाते, इस तरह से डीएनटीपीस ऐड करता रहता है, राइट। अगर हम प्राइमर रिमूवल की बात करते हैं, ये हो गया प्रोकैरियोट्स, ये हो गया यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो प्राइमर रिमूवल करते हैं उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉल 1, एंड यूकैरियोट्स में जो करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंड आरएनएस एच, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं ये बता रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, ये हो गया आपका टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये हो गया आपका सिंथेसिस वाला स्ट्रैंड। यहाँ पे जो मैंने रेड कलर का दिखाया ये हो गया आपका प्राइमर, राइट। ये व्हाइट कलर जो है ये आपका हो गया प्राइमर। अब यहाँ पे प्राइमर आरएनए का है, आरएनए के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको ब्रेक करता है आपका आरएनएस एच, इट ब्रेक्स आरएनए बॉन्ड, राइट। लेकिन ये जो आपका आरएनए है और यहाँ से आपका डीएनए है, लास्ट आरएनए जब डीएनए के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करेगा उसको ब्रेक करते हैं कौन, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, राइट। if this is a template and these are primers, you can say, and these are DNTPs, right. So these primers they share a bond, right. So this bond is broken by your RNase H, which we breaks RNA bond, right. But जो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस है, if we talk about flap endonucleus, it breaks the bond between you can say it breaks the bond between last RNA and DNTP. This is what we call flap endonucleus. It basically cuts the bond, this RNA and this DNA. This is RNTP, this is DNTP, right. Once this primer has been removed, there is a creation of the gap, राइट। अगर हम ये प्राइमर्स को हटा देंगे ये पूरा खाली हो जाएंगे, राइट। तो उसको फिल करने कौन आते हैं, उसको फिल करने आते हैं आपका डीएनए लाइगेज। क्लियर हुआ, यस। तो अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, जो डीएनए लाइगेज है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, डीएनए लाइगेज को जरूरत होता है एटीपी एंड एनएडी प्लस की, जो कि आपकी कोफैक्टर की तरह काम करता है। So DNA ligase needs the help of ATP and NAD+ as cofactor.
सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को देखना है। इसको रिकॉग्नाइज करते हैं आपकी कुछ इनिशिएटर प्रोटीन, जो कि आपका होता है डीएनए ए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड क्या होता है आपका डीएनए ए होता है, लेट मी राइट इट प्रॉपरली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अगर मैं सबसे पहले की बात करूं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, राइट, यहाँ लिखती हूँ मैं। प्रोकैरियोट्स में जो होता है बेसिकली यहाँ पे होता है ये मोनोरेप्लिकॉनिक, बट यूकैरियोट्स में होता है मल्टी रेप्लिकॉनिक, राइट, मल्टी रेप्लिकॉनिक। अगर हम इनिशिएटर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है आपका डीएनए ए, राइट, यहाँ होता है एमसीएम हेलिकेज, क्लियर। डीएनए ए को जरूरत है डीएनए सी की, और हेलिकेज को जरूरत होता है CDC6 एंड CDT1, क्लियर हुआ। प्राइमेज जो होता है आपका प्राइमर सिंथेसिस करता है। प्राइमर सिंथेसिस जो प्रोकैरियोट्स पे करते हैं उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉल 1, एंड जो आपका यूकैरियोट्स में प्राइमरी सिंथेसिस करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। इसको हम बोलते हैं प्राइमेज, जो प्राइमर की सिंथेसिस करते हैं उसको हम बोलते हैं डीएनए जी। इसको हम बोलते हैं डीएनए जी प्रोकैरियोट्स के केस में, और अल्फा बोलते हैं यूकैरियोट्स के केस में। फिर जो प्राइमर रिमूवल करते हैं उसको, वो प्राइमर रिमूवल कौन करते हैं, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस आरएनएज एच इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, एंड प्रोकैरियोट्स के केस में करता है पॉल 1। फिर ये गैप फिलिंग होता है सीलिंग, जो कि आपका लाइगेज करते हैं, क्लियर हुआ। यस, ये कुछ लास्ट क्लासेस का रिवीजन है। एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स पॉल 1, 2, 3, 4, 5 5 टाइप के होते हैं, जो कि पॉलीमरेज 1 में तीनों एक्टिविटीज होते हैं, प्रूफ रीडिंग, प्राइमरी रिमूवल, डीएनए रिपेयर। पॉल 2 एसिस डीएनए पॉलीमरेज 3, पॉल 3 is the main replicating enzymes, and pol 4 and 5 belongs from Y family, and this is a process origin monorepliconic होता है for prokaryotes. This is for prokaryotes, right? Monorepliconic origin is recognized by DNA A, helicase DNA B, which needs the help from DNA C. SSBP is single-stranded binding protein. Primase DNA G, replicating enzyme DNA polymerase 3, topoisomerases DNA guidase A and B. Processability complex beta clamp loader gamma complex. Rate of replication is 1000 nucleotide per second. If you like this session, hit the like button. Keep on watching. Thank you, students.